Today is 26th of August 2022. We are in the Kot Malla village of Rudraprayag district in the state of Uttarakhand, India. This is Jagat Singh Chaudhary from this village. Not many people know his real name. For them, he is just Jangaliji, guardian of the forests. Chaudhary was bestowed this unusual title in 1993 at an environmental meeting in a local school for having transformed 1.5 hectares of barren wasteland into a living and thriving agroforest. The journey of Jangaliji began in 1973 when he, then a BSF soldier, returned to his village for a vacation. One evening, he got the news that a village woman had fallen down the mountain while trekking to collect fodder and died of fatal injuries. The tragic incident kept him awake and thinking all night. Moved by the plight, the young soldier spent the rest of his vacation finding ways to reduce the drudgery that was part of every local woman's daily routine. He thought of cultivating plants on a patch of barren and rock-strewn land his family inherited near the village that would provide food, fodder and fuel. His father encouraged him to accomplish the task. In due course of time, a rich agroforest spread over the land, breathing life into it. The forest improved the microclimate and augmented the water table of the area. It also solved the problem of the village women going on long, arduous treks to collect fodder. Gradually, the forest teemed with wildlife due to its biodiversity. In his forest, species as diverse as like oak, betel, olive, cane, etc. all grow together. In 2002, Jangaliji was felicitated by the governor of Uttarakhand for his outstanding work in the field of nature conservation. In 2007, he was invited by HNB Garhwal University in Srinagar to develop a model agroforest on the campus. He completed the project successfully in 2010. Over the years, Jangaliji has continued working towards creating a healthy, well-functioning ecosystem that boosts the local economy. Other than distributing seeds and saplings, he also teaches alternative farming methods like vermiculture, beekeeping, bamboo cultivation and rabbit farming to the locals. Now, let us listen to him. तो सबसे पहले आपको- जंगली जी को प्रणाम। मेरा भी आपको प्रणाम सर। और जी मैं ये जानना चाहूँगा, जी जो पर्यावरण चेतना है, जी आप सरकारी सेवा में थे और किस तरह से ये सब शुरुआत हुई। आज विश्व भर में आपके काम को सराहा जाता है। सर, ये ना 74 के दशक की 70 के दशक की बात है। जी मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात था। जी 71 की मैंने लड़ाई लड़ी, कश्मीर में हमारा पोस्टिंग थी। 71 में मैंने लड़ाई भी लड़ी जी और 73 और 4 के बीच में मैं छुट्टी आया था। अब छुट्टी आया तो घर में कोई नहीं देखा। क्या हुआ कि मैंने देखा पहाड़ों में महिलाएं, उनकी जीवनचर्या, दिनचर्या अब थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन तब जी 70 के दशक में घर और जंगल ही था। जी सुबह उठे, पशुओं को चारे के लिए जंगल चले गए, लकड़ी ईंधन के लिए जंगल चले गए और 10-10 किलोमीटर तक महिलाओं को दिन भर जंगल जाना होता था। और उस दौरान क्या होता था कि कई महिलाएं गिर भी जाती थी डंगारों से, इंजर्ड हो जाती थी, कई मर भी जाती थी। तो ये घटनाएं मेरे दिमाग में बनती रही। ऐसी एक घटना उस दौरान घटी थी। तो मुझे बड़ा अब देखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये किया, प्रकृति ने को यही मंजूर था शायद। उसने मेरे मन मस्तिष्क में एक अवधारणा डाली। तो मैंने ये सोचा कि भाई हमारा जीवन क्या है, जिस चीज के लिए आज हम इतना दूर भटक रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसमें कमी लाई जा सकती है। हमारे जो पहाड़ के गांव हैं, उसके पास बंजर जमीनें बहुत हैं। अगर मैंने कहा इन जमीनों में अगर हम चारा और ईंधन के वृक्ष और घासें उगा दें तो
घर में पशुपालन तो करना ही है, खेती भी करनी है। जी तो हमको क्या होगा कि भाई महिलाओं को नजदीक ही जब चारा ईंधन मिलेगा तो वो 10-10 किलोमीटर क्यों जाएंगी। जी फिर उनके पास समय भी होगा। वो मेरे पिताजी उस टाइम चिल्लाते हैं, उनकी फिर 74 में उनकी डेथ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ऐसा करूँगा। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा हमारे पास बंजर पड़ा हुआ है, बाप दादाओं का बंजर है, हमारी अपनी जमीन है। अब मैं तो कुछ नहीं कर पाया, फौज में रहा 28 साल नौकरी की, लेकिन अगर तू कुछ करता है तो वहां पर ऐसा कर कि वहां पेड़ लगाने तो लगा ले। तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र यही रही होगी साहब करीबन 24-25 साल। अच्छा, तब 24-25 साल। नहीं रही होगी। वहां पर पहले तो बंजर को देखा, समस्या ये थी कि वहां तो मैंने सबसे पहले उसकी फेंसिंग की दिशा में, तो बायो फेंसिंग पर मैंने जोर दिया। अच्छा। कि उसकी चारों तरफ से जब घेर बाड़ हो जाएगी जी जी। तो तब मैं कुछ अंदर करूंगा तो ठीक रहेगा। समय लगा होगा। हाँ, फिर वहाँ प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना, चारागाह, पानी नहीं था। पानी की समस्या ये थी कि 2-2-2.5 किलोमीटर से वहाँ पानी लेके जाना है। अच्छा। पौधों में डालने के लिए। पौधों में डालने, उनको जिंदा रखने के लिए। तो 1980 में मैं रिटायर होकर घर आ गया। अच्छा। मैंने रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट। मैंने कहा भाई इसको मैंने करना ही करना है। अच्छा। तो जब मैं घर आया तो तब आपने ये नहीं सोचा कि एक अच्छी खासी पेंशन मिलेगी? देखिए पेंशन तो मुझे पेंशन हुई। हाँ, पर कम होगी ना उसके। कम हो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन देखिए मन में जो कीड़ा पैदा था ना, अब वो कीड़े को क्या हुआ, फिर मैं वही जानना चाहता हूँ। तो मैं लग गया जी। फिर वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, ट्रेंचेज बनाई। मुझे सिर्फ दिमाग में कहा गया था कि अगर मैं ये ट्रेंचेज बनाता हूँ नालियाँ टाइप की तो इसमें पानी रुकेगा बरसात का, ये दिमाग में था। उस दशक में 70 के दशक 80 के दशक में, और मैं ये करता रहा। फिर मैंने मृदा को संरक्षित करने में, क्योंकि मेरे दिमाग में तब से था कि मिट्टी तो बह गई है, बिल्कुल। अब इस मिट्टी को मैं रोकूं कैसे? बिल्कुल। अगर मैं कुछ करता और वो बह जाता फायदा कुछ। इसलिए मैंने उसके लिए क्या किया, उसको मेन टाइप की बना करके उसमें घासें लगवाई। ठीक है, मेन पर। जी जी। जिस तरह की पानी भी रुके और ट्रेंचेज जो ऊपर पीछे की तरफ ट्रेंचेज बनाई आगे मिलने की। तो इस तरीके से वहां पर क्या हुआ कि सब धीरे धीरे करके वहां पर वनस्पति मतलब एक इकोलॉजिकल सिस्टम उगने लगी। अच्छा, अब उगने लगी तो इस तरीके से ये कार्यक्रम मेरा चलता ही रहा। जी। तो 90 के दशक में यहाँ पर एक गोष्ठी हुई। राजकीय हाई स्कूल था तब, वो आज इंटर कॉलेज है नदौली में। तो उसमें सारे क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया, मुझे भी कहा गया कि आप आइए, लोगों को बताइए पर्यावरण के बारे में, पेड़ों के बारे में। तो मैं भी चले गया। तो उस दिन वहाँ पर एक जो प्रधानाचार्य थे रावत जी और सोशल वर्कर क्षेत्र के सारे ने मिल करके एक सर्टिफिकेट बनाया। अच्छा। और उसमें लिखा कि आज हम इनको जंगली की उपाधि से सम्मानित करते हैं। ओह, अच्छा, वहाँ से। हाँ, वो जो जंगली की उपाधि का सर्टिफिकेट उन्होंने बकायदा प्रिंसिपल के दस्तखत, सोशल वर्कर के दस्तखत करके जब मुझे मिला। अच्छा। तो खैर हंसी बहुत हुई। आप जानते हैं 2-3 दिन तक आज खाना भी नहीं मिला। अगले दिन अमर उजाला के फ्रंट पेज पर छप भी गई न्यूज़। अच्छा। कि लोगों ने उनको जंगली के उपाधि से सम्मानित किया। हो भी गया, अखबार भी हो गए। वो अखबार कहीं न कहीं मेरठ से चलते चलते लखनऊ पहुंच गया। अच्छा। और तब हमारे उत्तरांचल के सेक्रेटरी हुआ करते थे स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर आर.एस. टोलिया साहब जी। उन्होंने पढ़ा और किसी को नहीं बताया। अच्छा। और वो चुपचाप करके यहाँ पहुंच गए। अच्छा। ये जंगल भ्रमण पर। अच्छा। अरे जब उन्होंने जंगल भ्रमण किया बहुत उनके बातें हुई। कब की बात है ये 1993 की बात। उनका वो पत्र आज भी मेरे पास। उन्होंने लखनऊ जाते ही पहला काम ये किया कि सारे डीएम, सारे कमिश्नर, सारे फॉरेस्ट के चीफ, ये सबको एक पत्र जारी किया। अच्छा। कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में ऐसे ही जंगल बने जी। और इसके कार्य योजना इस बरसात से पहले मुझे प्रस्तुत की जाए। अच्छा जी। फिर तो साहब यहाँ तांता लग गया। रोज ही कोई ना कोई आ रहा है। फिर मुझे उन्होंने टोलिया जी ने कहा जंगली जी अब जंगल तुमने बना दिया, मॉडल तुम्हारा हो गया, अब आप ऐसा कीजिए कि बाहर निकलिए, अब लोगों को बताइए। तो फिर जंगल भ्रमण पर लोगों का तांता लग गया, एक आ रहा है दूसरा आ रहा है। तो उस दौरान
क्या हुआ, एक बड़ा घटना घटी कि एक बॉम्बे से स्टार प्लस के लिए एक वो बनती थी फिल्म। अच्छा। कोई लड़की थी उसमें, रूबिका थी, क्या थी, रूबीना थी, हाँ, कौन जो थी, भी रही। वो एंकर थी। और हाँ। इस तरीके से एक टीम आई बॉम्बे से अच्छा। फिल्मांकन करने। तो जब फिल्म बन रही थी जंगल में, बिल्कुल 15-20 लोगों का उनका ट्रूप था वो बल्कि मेरा इंटरव्यू, पहले मेरी पत्नी का इंटरव्यू ले रही थी। मेरे साथ D.R. प्रोज जी, डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा, ये लोग मेरे उस दिन हाइप्रेक से नोटियाल जी, ये लोग भी आए थे उनके साथ। स्वीकार, आम आदमी ने स्वीकार किया। आज देखे आप, हर आदमी पेड़ जो है, चारा के पेड़, आज महिलाएं जंगल जाई नहीं, आज उनको घर में ही चारा, भीमल, कड़ी, किमला, खड़ा, ये सब मिल जा रहा है, तो फिर क्यों जाएंगे। ऐसे करके चारा घास लोगों ने पालना शुरू कर दिया। एक दौर था, बस मेरी तसल्ली हो गई कि मैंने जो बीड़ा उठाया था वो पूरा हो गया। जी, तो इसमें एक तरह से आपने महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने शुरू किया था, आज कितने प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियाँ आपके जंगल में होंगे? देखिए साहब, ये 4-5 हेक्टेयर वो जमीन है। हाँ। देखिए क्या है कि वहाँ पर काउंटिंग, जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो दिल्ली से टीम आई थी। अच्छा। उसने प्रत्येक पेड़ की काउंटिंग की। अच्छा जी। जी। तो करीबन 1.5 लाख पेड़ है। अच्छा, 1.5 लाख। 60 प्रजाति। 60 प्रजाति है। जी। जी। और उसमें चारा घास है। जी। तो मैंने उन पेड़ों के बीच में अपनी आजीविका का समाधान ढूंढा। अच्छा। और मैंने उसके बीच में अदरक, हल्दी, इलायची, अच्छा, और ये जड़ी बूटियां ये लगानी शुरू की। वो सफलतापूर्वक आज भी मेरे उस जंगल में 50 क्विंटल हल्दी है। अच्छा। आज भी है। वो मेरी आजीविका बनी। और मैंने एक लड़का, भाई का लड़का मेरे साथ, भरत सिंह नाम है उसका, मेरे बड़े भाई का लड़का है। मैं कल शायद मिले भरत चौधरी। तो उस लड़के को मैंने अपने साथ 20 साल से मेरे साथ है जी। अब वहीं से जो भी आमदनी होती है उसकी हल्दी बेच के ये करके वो उसको मिलता है। अब उसका ये एक लाभ जो मुझे मिला इतने काम करने के बाद, क्योंकि जी मैंने जो ट्रेंचेज बनाए जी जी, जो मैंने मेन बंदी की, जो मेन पर चारा घास लगाई, मैंने पत्तों की उसमें खाद के लिए जो पत्तों के लिए ट्रेंचेज बनाए और वो पत्ते सड़ाने शुरू किए, वो आजीविका के, वो अदरक हल्दी के लिए। इस तरीके से क्या हुआ, वहां पानी का संगठन हो गया और उसके जंगल की जड़ में पानी का स्रोत विकसित हो गया। किसी जमाने में रहा होगा पानी, किसी जमाने में था नहीं भी रहा होगा तो हो गया नहीं, वहां पर पानी आ गया। बहुत सुंदर। अब पानी जब आ गया तो मुझे भी इजी हो गया, पानी लेकर के और आराम मिल गया। फिर मैंने वहां पर रहने के लिए थोड़ा सा अपना बना दिया। तो इस तरीके से, और फिर क्या हुआ, कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग उसका भ्रमण कर चुके हैं, देश विदेश की। अमेरिका, शिकागो से हेलेरी हंटर, अमेरिका के कई लोग आए। फिर ऑस्ट्रेलिया से जानकी दीपेन, इंग्लैंड से ये रेमेडी के जो लोग हैं उन्होंने उसका भ्रमण किया, उन्होंने बकायदा नेट पर डाला है। बिल्कुल ऐसे ही फॉरेस्ट बनने चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक शिक्षा मिलती है जो आपसे अभी बातचीत के आधार पर मैंने अर्जित की है कि प्रकृति अपना संरक्षण खुद करना जानती है। उसमें अगर मनुष्य थोड़ा सा हाथ लगा दे तो कहीं का कहीं चमत्कार हो जाता है, जो आपने कर दिखाया। और अगर आप उससे कतराते हैं या आप उसको मारते हैं या आप उसका दोहन पर ज्यादा जोर देते हैं या आप उसको खसोट लूट करते हैं, तो उसके भी परिणाम वो देती है। और उसके परिणाम आज हमको दिखते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मैं यहाँ पर एक वैज्ञानिक को कोट करना चाहूँगा, वो है प्रोफेसर डॉक्टर जो भी कह लीजिए, लवलॉक। अभी उनका हाल ही में निधन हुआ और वो बहुत ही अनकन्वेंशनल साइंटिस्ट थे। दुनिया भर में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके विज्ञान को बहुत माना भी जाता है। उन्होंने एक थ्योरी दी, गैया थ्योरी। गैया जो थी वो GAIA, गैया जो ग्रीक की जो प्रकृति की देवी थी उसका नाम था। तो उसके नाम पर उन्होंने ये थ्योरी विकसित की। उनका कहना था कि प्रकृति अपने आप में एक सिस्टम है और वो अपना ही सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है वो। तो मतलब वो उसमें
भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप भी उसी उसमें काम कर रहे हैं। आपने एक काम आगे बढ़ाया, प्रकृति ने उसको अपने आप ही नहीं, प्रकृति देखो, हमने सिर्फ अटैचमेंट किया, हाँ वही, प्रकृति से हमने हाँ, अपने आप को जोड़ दिया। जी, दो ही बातें थी, या तो मैं प्रकृति से हट जाता था हाँ, तो कहीं नौकरी करता, हाँ, आज अच्छा देहरादून में बस जाता, दिल्ली में बस जाता। हम्म, लेकिन प्रकृति सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, हाँ वही। सतत विकास की बात करती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसमें आप मनुष्य की क्या भूमिका देखते हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे हैं? कि अरे उधर मत छेड़ो, उस हाँ। पत्थर को मत हिलाओ, हाँ, रहने दो, मत छोड़ो वहाँ, वो पत्थर को मत छोड़ो। अगर बेटा तूने वो पत्थर बाहर निकाल दिया तो ये सर फोड़ूं दे जाल। हाँ, ये था संरक्षण, बिल्कुल, जिसके प्रताप हमारी पीढ़ियां प्रकृति प्रेमी भी रही और आनंद से उन्होंने जीवन जिया। जी, आज है कि कुछ नहीं होता है, अरे काटो इस चट्टान को, कुछ नहीं होता है, अरे रोको इस पानी को, कुछ नहीं होता है, हम सुप्रीम है, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं, हम जो चाहे कर लें। लेकिन देखिए, जब भूस्खलन आता है तब वो साइंटिस्ट हो, वो बड़े बड़े फिलोसोफर हो, धराशायी हो जाते हैं। जब वो चट्टानें टूटती हैं, जब बादल फटते हैं, गांव के गांव ध्वस्त हो जाते हैं, जब पानी के स्रोत सूखते हैं, पानी के लिए लोग दर दर भटकते हैं, तब हमारा पता चलता है कि हम प्रकृति से कितने दूर हैं। हमने ये परमाणु बम किस लिए बनाए हैं? हम सब जानते हैं कि ये परमाणु बम का जो तेल है या जो गैसें हैं, ये सारे हमारे प्रकृति को नुकसान करेंगे। लेकिन यहाँ हमने प्रकृति को नहीं देखा, खुद को देखा। अपने मैं कितना पैसे से संपन्न हो जाऊं, मैं कितना बलवान हो जाऊं, प्रकृति का प्रकोप जब बदल गिरेगा तो तुम धराशायी जाओगे। यही मिस्टेक हो गई है। अब हम थोड़ा सा अपने हिमालय की पड़ताल करते हैं, और खासतौर पर उत्तराखंड हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी हम लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारे बांध बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, गांव-गांव में सड़क जा रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, और चीड़ ने अलग से बर्बाद कर दिया है। इन सारी चीज़ों में आप आने वाली पीढ़ियों की भूमिका किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, हमने पीढ़ियों को ऐसा बना दिया है कि उसकी मजबूरी बना दी मैंने चीजें। बिजली उसकी मजबूरी। देखिए, मजबूरियां आदमी से गलत करवा दी है जी, मजबूरियां बना दी हमने। रिजल्ट आज हमारे सामने है, बोलने की जरूरत ही नहीं है कि चीड़ के जंगल जब जलते हैं, भाई देखो, हाँ तो है, करोड़ों टन जो कार्बन उड़ता है वो ग्लेशियर पर जाके टिकता है। ग्लेशियर कम 3 महीने वो जंगल चलते रहते हैं, सारी जैव विविधता खत्म, वन्य प्राणी खत्म। अरे ऐसे समय आग लगती है जब पक्षियों के अंडे, बायोडाइवर्सिटी जो बढ़ाते हैं, वो सब मर जाते हैं भाई साहब। और इसका असर ये हुआ है कि सारे वन्य प्राणी, जब जंगल में कुछ है ही नहीं तो गाँव में पदार्पण हो गए। आज गाँव का आदमी, उत्तराखंड के गाँव के लोग इसलिए परेशान है कि उनको वन्य प्राणियों ने बंदर, लंगूर, रीक, भालू, सुंगर सब गाँव में आ गए। तो लेकिन एक खुशी की बात है कि आज के डेट में ना, चाहे नमामि गंगे चाहे कहीं भी है, जो भी प्लांटेशन हो रहे हैं वो मिक्स हो रहे हैं, वो चीड़ नहीं हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब लेकिन चीड़ के इसको खत्म करने का क्या तरीका देखते हैं? ऐसा है ना जी, आप बोलेंगे हम बुराई को एकदम से खत्म कर दें, संभव नहीं है। उसमें आपको अच्छाई घुसानी पड़ेगी। अगर हमें चीड़ को कम करना है, खत्म तो हम नहीं कर सकते। हम बोलते रहे लाख, चीड़ को हम वो भी एक स्पीशीज है, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, उसका फैलाव रोक सकते हैं। और उसके बीच में हम मिश्रित प्रजाति के वृक्षों का रोपण कर दें, तो जिससे कि उसके जो बीज हैं वो ज्यादा फैल के जमे नहीं, मोनोकल्चर कोई नहीं हो, मिश्रित प्रजाति। अब ये देखिए, खेती-बाड़ी में भी मोनोकल्चर आ रहा है, वो गलत है। और उसमें किसानों को निर्देश दिए जाते हैं बाकायदा कि आपने एक विशेष प्रजाति का धान लगाना है, तो वो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है। भौतिक लैबोरेटरी न्यू दिल्ली में विज्ञान भारती ने एक पूरे देश में नेशनल सेमिनार किया, और वहां पर एक
साइंटिस्ट थे भक्ति जो उसके ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया कि जंगली जी आप भी अपना प्रेजेंटेशन दो। और ये हुआ IPL में, इंडियन फिजिकल लेबोरेटरी में हुआ, जहाँ पर सारे भारतवर्ष से 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट थे वहां पर बैठे हुए थे और सबको प्रेजेंटेशन हुआ। मेरा भी 15 मिनट का प्रेजेंटेशन हुआ और मैंने यही बात की, जैव विविधता की बात की, वाटर कंजर्वेशन की बात की, मिक्स फॉरेस्ट्री की बात की, आजीविका की बात की, अनएम्प्लॉयड मास को माना बेरोजगारों को यानी यूथ को जोड़ने की बात की, महिलाओं को समाधान की बात की। तो मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। लास्ट में जो ज्यूरी थी प्रेजेंटेशनों को देखना था, 1000 पंडित, 3 दिन का सेमिनार था कि इस साल का आर्यभट्ट अवार्ड जगत सिंह जंगली को दिया जाएगा और सारे साइंटिस्ट मेरे विरोध में। अच्छा हाँ, और क्या ये देश आगे बढ़ेगा, सारे विरोध में आगे। अच्छा। और एक किसान को तुम आर्यभट्ट दे रहे हो, ये तो साइंस का अवार्ड है, बताइए। ये मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। और अच्छा, मेरे पास भर्जी आ गए, उनका तो सेमिनारी सब साइंटिस्ट ने बहिष्कार कर दिया। अच्छा। तो उनके लिए समय मैंने लिख के दे दी, उनका भर्जी नमस्कार। मेरे साथ वो थे नेगी जी इसके बाड़िया इंस्टीट्यूट के। अच्छा। वो भी मेरे साथ मैं लिख के दे दी कि मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, मैं तो किसान हूँ। उन्होंने कहा चलो बढ़िया हो गया। उन्होंने जूरी के पास गई कि भाई अब वो आदमी मान गया है कि किसी साइंटिस्ट को दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हम क्या है उसी को मिलेगा जिसका हमने सिलेक्शन किया है, चाहे हम नहीं जानते वो किसान है साइंटिस्ट है क्या है, हमने अवार्ड सॉल्यूशन पर दिया। ठीक है। अब भटजी भी क्या करे। अगले दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे कृष्णमूर्ति के, रामामूर्ति कोई थे जी। उनको आना था वैल्यूटरी में चीफ गेस्ट। अच्छा। भटजी ने उनको फोन किया कि यहाँ तो साइंटिस्ट ने विरोध कर दिया है, हमने ऐसा उनको अवार्ड दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भटजी आप चिंता मत करो, सिर्फ ये पूछो उस आदमी से कि वो मैं जब आऊँ तो क्या प्रेजेंटेशन देगा मेरे सामने। तो उनका सामने मना लूंगा उनको, वो बड़े इजी गोइंग आदमी, मैं मना लूंगा। बोल तो ठीक है आप चिंता मत करो। अच्छा। मैं 15 मिनट पहले आके उनका प्रेजेंटेशन देखना चाहूँगा। तो साइंटिस्ट आ गए, सारे साइंटिस्ट आ गए वैलिडिटी में। चलो अभी नहीं हुआ घोषणा, अभी घोषणा नहीं हुई है, चिट हटा दी उन्होंने मेरे नाम की। तो चीफ सेक्रेटरी आ गए, सब सेक्रेटरी आ गए वहाँ, मुझे बुला दिया उन्होंने। मेरे साथ बाड़िया इंस्टीट्यूट के नेगी जी को बोले कि इनके जरा जंगली जी को मना के रखना, होता ही है यार, कहीं ये बिदक ना जाए, इनका क्या जा रहा है। तो मैं चलेगा, मैंने बकायदा प्रेजेंटेशन दिया, मिक्स फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन, महिलाओं की चारा ईंधन की समस्या का समाधान, यूथ को मैंने कैसे जोड़ा, मेरी आजीविका को कैसे जोड़ा, कैसे मैंने जैव विविधता को संरक्षित करके वन्य प्राणियों को आने का एक प्लेटफॉर्म दिया, जैव विविधता बढ़ाने के लिए तितली है, पक्षियां, उनको हम इस तरीके से मैंने ये किया, वाटर का सॉल्यूशन दिया। बहुत खुश हुए। उसके बाद वो खड़े हुए चीफ सेक्रेटरी कि भाई देखिए मैंने उनका प्रेजेंटेशन देखा, आपने भी देख लिया दोबारा, मुझे एक बात बताइए आप, छोड़िए आप कि वो किसान है वो क्या है, ये देखे ना जो कुछ आपके सामने, वो कोई है मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, मैं उनको नहीं जानता। मैंने वो सॉल्यूशन देखा है, महिलाओं को चारा ईंधन के सॉल्यूशन इन हिमालय, वाटर को कंजर्वेशन करने के तरीके, सॉइल को कंजर्वेशन करने के तरीके, जैव विविधता को संरक्षित करके इकोसिस्टम को डेवलप करने के तरीके, आजीविका को डेवलप करने के तरीके, आम आदमी जमीनों से कैसे जुड़े, आम आदमी अपने जंगलों से कैसे जुड़े, इसका सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया। 5 सॉल्यूशन हैज गिवन। अब मुझे बता दीजिए कि आप में से कितने साइंटिस्ट ने पेपर प्रेजेंट किए हैं। अगर किसी प्रेजेंटेशन में 5 सॉल्यूशन हैं तो प्लीज कम अहेड, और मैं वो भी देखना चाहूंगा। तो चुप्पी नहीं, सब चुप, सब चुप। उसे उनका कि मैं घोषणा करता हूं कि आर्यभट्ट अवार्ड जगत सिंह जंगली को दिया जाए, और उन्होंने भाई साहब मुझे आर्यभट्ट अवार्ड दिया। उसके बाद साइंटिस्ट चुप हो गए, फिर तो सारे खुश भी हो गए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आप भी तो साइंस का ही काम कर रहे थे। नहीं, अब मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो ग्रासरूट का आदमी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं साइंटिस्ट हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे काम को इस तरीके से एक हुआ तो आर्यभट्ट अवार्ड मिला। इस तरीके से फिर उसके बाद
2002 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। पूरी दिल्ली से टीम आई। मैंने कहा मेरा भाग्य, बाकियों को तो ऐसे ही अवार्ड मिल जाते हैं कागज पत्रों में, यहाँ तो टीम आ रही है इंक्वायरी करने। 4 आदमी आए, नाप रहे हैं पेड़ों को, जमीनों को नाप रहे हैं, 1 दिन पूरा लगाया उन्होंने। और तब रिपोर्ट जब प्रस्तुत की, एक दुबे जी थे, उन्होंने जो है नेशनल अफॉर्टेशन बोर्ड वालों ने, फिर उन्होंने, तब मेरा नाम अटल जी के टाइम पर मुझे नेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद सम्मान और ये दौड़ तो चलते ही रही है। तो माना देखिए जी सॉल्यूशन मैं आज, और मैंने एक और सॉल्यूशन दे दिया आज के डेट में जी। दुनिया में आज तक, दुनिया में, मैं झूठ नहीं कर रहा हूं आपसे, कोई अवार्ड ऐसा नहीं बना है जो मेरे लिए बना हो दुनिया में आज की डेट में। कल की बात मैं नहीं करता। मेरा सबसे बड़ा अवार्ड, मैंने अपने काम को, अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित किया है। आज मेरी पीढ़ी मेरे कामों को फॉलो कर रही है। माना मेरा एक बेटा है और उसने भी एमएससी के एनवायरमेंट साइंस से, और मेरे ही कार्यों को वो आगे बढ़ा रहा है। मेरे लिए इससे जब मैं मरूं तो इतना बड़ा चैन मुझे आएगा, कम से कम मेरे काम को मेरी पीढ़ी ने आगे बढ़ाया और बढ़ा रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार समान है। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन रिजल्ट पर कोई नहीं गया, और जब तक हम रिजल्ट पर नहीं जाएंगे जी, हम सफलता नहीं पा। एक अंतिम प्रश्न आपसे और करना चाहता हूँ जी, कि देखिए आप इतने विवेकवान हैं, इतने जागरूक हैं, आप बिल्कुल ग्रास रूट्स पर काम भी करते हैं। एक अनुभव तो आपको होगा ही कि सारे जो निर्णय होते हैं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में, वो राजनीति करती है। फैसले राजनीति के होते हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर जो भी कर लें, जब तक सरकार कोई डिसीजन नहीं लेगी कुछ नहीं होता उस तरह से। तो आपको क्या ऐसा लगता नहीं है कि हमारी राजनीति ही ग्रीन हो, ताकि हमें वो लक्ष्य हासिल हो सके जो हम आसानी से हो सके जो हम चाहते हैं? मैं देखिए साहब, मैं अटल जी, मेरा इन चीज़ों पर बहुत मंथन हुआ है और बहुत मैंने कोशिश भी की है। जी। राजनीति है, नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, सब हैं, है तो इसी धरती पर ना। जी। वो ऑक्शन तो सब एक जैसे ले रहे हैं ना। वो राजनेता अलग से ऑक्शन नहीं ले रहा। जी। आम आदमी जो ले रहा है वही ले रहा है। जी। सही बात ये है, उत्तराखंड की सही डिबेट आज तक, मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, मैं, मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कई सेमिनार होते हैं, सही डायलॉग राजनेताओं तक पहुंचा ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीति ही ग्रीन हो, जिसमें वो तो चेतना हो, अगर पर्यावरण की चेतना हो, तो क्या वो सहज नहीं हो जाएगा? मेरे से हुआ जी। तो चले उसको इस तरह से ले देते हैं जी कि ग्रीन पार्टी की बात नहीं करते, एक ग्रीन आइडियोलॉजी वाली, की मतलब जो धरती के पर्यावरण की बात करे, इकोलॉजी की बात करे, नॉन वायलेंस की बात करे, सस्टेनेबिलिटी की बात करे, सोशल जस्टिस की बात करे, और जो इकोलॉजिकल विजडम है उसकी बात करे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण हर पार्टी के मैनिफेस्टो में और हर पार्टी के चिंतन का हिस्सा होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दुर्भाग्य है जब लेकिन- मैनिफेस्टो पार्टियों का आता है, उत्तराखंड जैसे पार्टियों में, यहाँ पर्यावरण शब्द तो वन, और जो देखिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन भूमि है। वन तो इनके मैनिफेस्टो में कभी नहीं हुआ, इन्वायरमेंट कभी नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ जब तक नेशनल डिबेट में, नेशनल लेवल पर भारत सरकार भी पर्यावरण को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करके मंत्रा बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरा विश्व, चाहे यूनेस्को हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे कोई भी हो, जब तक इसको मैनिफेस्टो में नहीं डालते हैं, केवल भाषणों से, कुछ कागजों के दौड़ने से, कुछ फंड देने से पर्यावरण नहीं बच सकता है। इसके लिए ठोस कदम रखने की जरूरत है, और ग्रीन शब्द को, इनको अंगीकृत करना होगा। अगर जिंदा रहना है पीढ़ियों को, जिंदा, पीढ़ियां कारखानों से जिंदा, कारखानों से पेट पल सकता है। जिंदा रहने की अगर बात करते हैं तो जिंदा रहेगा आदमी जो मनुष्य सभ्यता आज जिंदगी है, वो न कारखानों से जिंदा है, न किसी विकास से जिंदा है, वो जैव विविधता के समृद्ध से पीढ़ियां जिंदी रही हैं। अन्न कारखाने में नहीं बनाया जा सकता, पानी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता है, और ऑक्सीजन भी आप कितनी बनाओगे, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। अब अंतिम एक है कि आप जो
नई पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें इस तरह की राजनीतिक चेतना होनी चाहिए या जो जिस तरह का ढर्रा चल रहा है उसको उसी पर आगे बढ़ना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि बहुत खाने की बात को किनारे रखो, जी अच्छा खाने की बात करो। हाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात मत करो, जी सस्टेनेबल जीवन जीने की बात करो। हम्म, पैसा जोड़ने से कुछ नहीं, पानी की बोतलें पी लोगे, हम्म, कूलर का ठंडा भी जो आते हैं पगार पगार इनका पानी, लेकिन धारे का पानी तुम नहीं, नसीब नहीं हो सकता है जब तक आप जमीन से नहीं जोड़ेंगे। जी और जो दम प्रकृति के बीच के हवा में है, जी प्रकृति के बीच के अन्न में है जी और प्रकृति के बीच के पानी में है, जी वो आपके मशीनों से बनाई हुई चीजों में नहीं है। हम्म, ये हमें आगे वाली पीढ़ी को बताना होगा। जी बहुत सुंदर। और एक आध कोई नारा आपका जो आपको बहुत पसंद हो उसको आप दोहराएंगे क्या? ठीक है जी, जीवन जीने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जी धरती को बचा रहे हैं, जी हवा को बचा रहे हैं, जी पानी को बचा रहे हैं, आजीविका को बचा रहे हैं। अगर आप सत्ता में हैं तो आप हमें बचाने की बात आपका जिम्मा है, जी जी क्योंकि एक राजनेता तो जमीन में काम नहीं कर सकता ना। एक राजनेता को हम बोलेंगे कि तो पानी पर काम कर, एक राजनेता को बोलेंगे कि तो जमीन में अन्न उगा, या एक राजनेता को बोलेंगे तो पानी पैदा कर या हवा पैदा कर, नहीं हो सकता। वो तो वही काम करेगा जो, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं लोग उनको संरक्षण देने का काम कौन करता है? सत्ता करती है, राजनीति करती है। उसे समझना होगा इन चीजों को। अगर वो समझ गई तो धरती सुंदर हो जाएगी। वो नहीं समझेगी तो जिस धरती को 5,200 साल बाद क्या देखना है वो 85 साल में खत्म हो जाएगी। तो एक जो नारा चल रहा है दुनिया में, लोकल टू ग्लोबल, यानी हम अपने जो स्थानीय संसाधन हैं उन पर निर्भर रहें, उन्हीं को सस्टेनेबल बनाएं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अभी बहुत सारे सामान बाहर से आता है तो ट्रांसपोर्टेशन में वो डीजल भी फूक रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, तो वो कम होगा। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए साहब, बहुत सारे नारे आते हैं, मैं नारों में कम जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इन नारों का, हम अपने काम में व्यस्त हैं। कई बार एक्ट लोकल ना एक्ट ग्लोबल, एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, कभी ये नारा आया, कभी कुछ नारे, ये नारे आते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा एक नारा है कि धरती को बचाने वाले डिपार्टमेंट को कौन देखेगा? जो लोग धरती को बचा रहे हैं, धरती को बचाने की सोच रहे हैं, जो लोग धरती को बचाने में जूझ रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। धरती तो बचाएगी ना, लेकिन मैकेनिज्म और सिस्टम की जब आप बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, अब यूएनओ की बात कर रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशन के, ये केवल ये खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करो वैसा, आइडिया आप खत्म है। मैं आइडिया को नहीं मानता हूँ, आइडिया है बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन एक्ट की जरूरत है। आइडिया जब तक एक्ट नहीं हुए, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, एक्ट में नहीं आएगा, उस आइडिया का मैं नहीं चाहता। और एक्ट से एक आइडिया नहीं, कई आइडिया निकल आते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो मैंने जंगल बनाया उससे कई समाधान निकल गए। बिल्कुल, आपने कई चीजें सोची भी नहीं होंगी, ऐसी हो जाएगी, मतलब ही नहीं। हाँ, मैं कोई विद्यार्थी थोड़ी था कि ऐसा करना। अरे उस दशक में पर्यावरण शब्द तो मैं जानता ही नहीं था। 70 के दशक में पर्यावरण शब्द तो आया ही नहीं था। जैव विविधता क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये तो धीरे धीरे चीजें जब हमने किया। ठीक है, फिर हमारी बात